Dear students, welcome to my YouTube channel PCM Academy. Now we are going to start a new topic, that is mathematical physics, and the topic is basically helpful for NET, GATE, GEM, JEST, all kinds of exams. Okay, so first of all I will discuss about matrices, and you know कि मैट्रिक्स का जो सिलेबस है वो नेट गेट जेम जेस्ट हर कोई एग्जाम में होते हैं. So we will start with matrix, then we will discuss about further more topics, but the topics will be so designed that that will be helpful not only for NET, CSIR, NET exam or GATE exam that are basically based on MSc syllabus, but for JAM exam and JEST exam. JAM basically the syllabus designed for JAM exam is on BSc syllabus, but JEST exam there are a lot of questions are asked from MSc syllabus also. So the course will be helpful for all kinds of exams, and I will discuss that topics first which are common for all these kinds of exam. Okay, so first we will discuss about matrices as a mathematical physics. So there are a lot of topics you know in mathematical physics. We will discuss one by one. Okay, so let us see first what we will discuss in this video, that what is the syllabus in all kinds of exam that are that are asked from matrices. Okay, so you can see there are various topics that are in the course of matrices, and we will discuss these topics which are written here. So let me point out these topics first. So you know your matrix course. Okay, so the topics we are going to cover this course is, first of all, this is very important thing, that basic definition and different kinds of matrices. Though you have already studied these things in your 10+2 level about basics of matrices and different kinds of matrix, but for our revision purpose or for fundamental discussion is also very important. Okay, so we will discuss first some basic things also, and then we will discuss about eigenvalues and eigenvectors. This is most important topics, you know, for any kinds of exam. Okay, whenever a question is asked from matrices, they ask from eigenvalues and eigenvector, and Cayley-Hamilton theorem. Okay, we will discuss this also. This is just the consequence of eigenvalue problem. And rank of matrices we will discuss. Okay, diagonalization of matrices, similarity transformation or similarity of matrices, functions of matrices, spectral decomposition, linear transformation. So these kinds of questions are basically asked in CSIR NET exam or GATE exam. But if you talk about only IIT JAM, then up to here is enough. Okay, there is Cayley-Hamilton theorem or sometimes rank of matrix. Okay, so if you talk about IIT JAM syllabus, then enough. So this is enough for IIT JAM. Okay, but for other exam, something like JES, so this portion is only, you can say, for JAM. Okay, but for other kinds of exam जैसे कि GATE, NET, JEST, यहाँ तो मतलब डायगोनलिज्म, मैट्रिक्स, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन मैट्रिक्स, ये सब से क्वेश्चन आता है, लेकिन जैम में बेसिकली इधर से क्वेश्चन नहीं आता है. बट ऐसा नहीं है कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का क्वेश्चन CSIR NET और गेट में नहीं आएगा. ओके, सो नेट गेट में तो ये क्वेश्चन आता ही है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का क्वेश्चन. और सो पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये आपको पढ़ना पड़ेगा. अगर आप एक BSc स्टूडेंट्स है तो भी आपको ये सब टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको BSc सिलेबस में है ना. भले ये जैम के सिलेबस में नहीं है, लेकिन BSc सिलेबस में तो है ये. ठीक है, तो इफ यू आर ए BSc स्टूडेंट्स और इफ यू आर ए MSc स्टूडेंट्स, डज नॉट मैटर, you have to go through all these topics. And obviously if you are BSc syllabus, then you can also appear in JEST exam also. So with JAM you should prepare JEST also, because you can get a important institution, research institution through JEST also. Okay, and something like IISc, TIFR. So you should prepare not only for JAM, for JEST also. JEST के बारे में ही भी आपको जानना पड़ेगा और प्रिपरेशन करना पड़ेगा. ओके, करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम है ना, ये समथिंग आज या कल आपको क्वालिफाई करना ही है. ठीक, इफ यू आर नाउ BSc, देन ऑब्वियसली यू शुड गिव द एग्जाम CSIR NET और गेट ऑल्सो, है ना. सो आपको ये क्वालिफाई तो करना ही है. सो यू शुड प्रिपेयर एवरीथिंग एंड द सिलेबस आई एम गोइंग टू डिजाइन इन सच अ वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. इफ यू आर MSc स्टूडेंट्स और इफ यू आर BSc स्टूडेंट, दैट डज नॉट मैटर. ओके, सो this is our first topics of mathematical physics, that is matrices, and inside matrices we will discuss these kinds of things. Okay, so let us start today about some basic things, something like basic definition. So first of all, what is the definition of matrix? So a square or rectangular, what is matrix? Matrix is nothing but, suppose you have some numbers or some functions. Okay, and if you arrange these numbers or functions in such a way
that is a square or rectangular array of numbers of functions with certain rules is known as matrices or matrix, and individual numbers or function are known as elements of the matrix. Suppose if you have some numbers, okay, maybe you have some numbers, maybe functions, whatever may have, but we should arrange this in some square or rectangular arrays, something like if you have some numbers, something like 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9, so you can see this is a square array है ना. So if you write this in this way, so this is a matrix. Okay, maybe it's something like that, some letter we can use that A B है ना, C D, so this is also a square arrangement you can see. But if you write in this way, that is A B C D E F, then you can see this is a rectangular arrangement है ना. So in this kinds, if we have some numbers, maybe it's complex numbers, something like that, I minus I 0 1, something like this. Okay, or maybe it is function, something like x square 1 2 3x 5, ऐसे हम कोई फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, समथिंग लाइक दैट इफ यू हैव f1 ऑफ x है ना, f2 ऑफ x, f3 ऑफ x और f4 ऑफ x, in this way we can represent. So these all are called actually matrix, but obviously we will call this matrix only when they will follow certain rules, and that rules we will discuss later. And the individual numbers or functions, ये जो individual numbers है, ये जो individual numbers है और जो function है, इसको हम क्या कहते हैं? Functions are known as elements of matrix. So these are called elements of matrix. Okay, so this is the very basic definition of matrix. And now what is order of matrix and some general concept we have to discuss. So a matrix of order m by n has m number of rows and n number of columns. You can see in the previous slide, you can see that some arrangement is here, and you can see some rows and columns is here, ऐसे करके है ना. तो इधर देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, सॉरी 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, एंड इधर देखो 1 रो 2 रो, ऐसे कॉलम एंड रो ये जो है ये मैट्रिक्स में रहते हैं. और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m by m. मान लीजिए कि यहाँ देखिए यहाँ कितना कॉलम है, 1 2 कॉलम है, तो 2 हो गया कॉलम, और रो कितना है? 2 रो है, तो ये हो गया 2 by 2, तो रो पहले होगा 2 by 2. जैसे मान लीजिए यहाँ कितना है? 1 2 3 कॉलम हो गया और 2 रो हो गया, सो 2 by 3. So in general हम कैसे लिखते हैं इसको? m by n. So here is the rows, you can write in this way, and here is the column. So here is m rows and n columns, and it can be read as m by n matrix. Okay, so this is how we can represent. And any individual element, suppose there is an element, we can write a matrix in this way in general notation also. Suppose we have a matrix, suppose 2 by 2 matrix. First m by n is suppose let us discuss for 2 by 2 matrix है ना. तो 2 by 2 मैट्रिक्स में क्या होगा? 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा है ना. तो 2 रो मान लीजिए कि यहाँ एक एलिमेंट होगा, यहाँ एक एलिमेंट होगा, यहाँ एक. तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट. सो यू कैन राइट दिस एलिमेंट इन दिस वे कि a11, दिस इज a12, दिस इज a21 एंड दिस इज a31, सॉरी a22. सो व्हाट दिस मीन्स एक्चुअली? 1 मीन्स 1. दिस इज द नंबर ऑफ द m क्या है? नंबर ऑफ रोज है ना, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम. तो देखिए ये क्या है? a11 मीन्स दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. यू कैन सी इफ यू सी दैट दिस इज द फर्स्ट रो है ना, एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम. सो a11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. यू कैन सी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है ना. So this is why it is 1 1. Similarly you can see that here is a12. a12 देखिए ये क्या है? ये फर्स्ट रो में तो है लेकिन सेकंड कॉलम में है. a12 मतलब क्या है? ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम. तो ऐसे इन जनरल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए AJK, तो वी कैन यूज द इंडेक्सेस समथिंग लाइक JK है ना, AJK. So it means this is the element of the matrix of jth column, of jth row and kth column है ना. So what this means? This is
द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ jth column, sorry, jth row and kth column in general. So when j is equal to 1, k is equal to 1, that is a11. Okay, and we can write in general a matrix. Suppose a matrix A is m by n matrix. So m by n matrix A को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A is a matrix, not this, something like this. So erase this. Suppose A is a m by n matrix, है ना? Suppose A is a m by n matrix. So how can we represent by using the element notation? Something like it is just A j k, है ना, m by n. ऐसे इसका मतलब ये है कि ये जो A मैट्रिक्स है, ये इसका जो ऑर्डर है ये m by n है, और दिस m by n इज ऑल्सो डिफाइंड द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, है ना. जैसे मान लीजिए 2 by 2 जो मैट्रिक्स है और 3 by 3 जो मैट्रिक्स है, इसको साइज डिफरेंट होगा. मान लीजिए 2 by 3 भी हो सकता है ना, कि 2 रो है लेकिन 3 कॉलम है, हो सकता है. जैसे कि A B C D E F, देखिए, है ना, रो तो 1 2 3 हो गया और कॉलम 2 हो गया, मतलब 3 by 2. और 2 by 3 का मतलब क्या है? 2 by 3 मतलब A B C D E F. देखिए यह रो हो गया 2 लेकिन कॉलम हो गया 3, है ना. तो ऐसा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स को कि दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स A J K m by n. Okay, so you should know about this some basic things, and I hope that you all know this, but I'm going to revise this thing again. Okay, so now we should start some matrix operation. Okay, so ऑपरेशन मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब होगा. लेकिन फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. व्हेन वी विल से दैट दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल. तो देखिए यहाँ पर जो टू मैट्रिक्स है, एक है ए जे के और एक है बी जे के. So we have two matrices, and these two matrices are equal. That means that A is equal to B. ये कब होगा? If and only if they have the same size. Same size का मतलब क्या होगा? अगर ये m by n हो गया तो ये भी m by n ही होगा. That means same size. And the corresponding entries are also equal. Entry मतलब A j k and B j k should be equal. For example, A11 is equal to B11, A12 is equal to B12. मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A, है ना. तो A जो मैट्रिक्स है हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ए जे के, है ना, m by n. तो मान लीजिए फॉर सिंपलिसिटी लेट अस टॉक अबाउट अ 2 by 3 मैट्रिक्स. 2 by 3 मैट्रिक्स. सो बी क्या होगा? बी जे के जो होगा ये भी एक 2 by 3 मैट्रिक्स होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. सो नाउ इफ वी एक्सपांड दिस मैट्रिक्स इन दिस वे दैट, देखिए मतलब 2 रो है तो फर्स्ट रो A11, A12, A13, और सेकंड रो क्या होगा? A21, A22, A23. तो देखिए क्या हो गया? एक 1 रो, 2 रो और 1 2 3 कॉलम. ओके, सो 2 by 3. सिमिलरली बी मैट्रिक्स में भी ऐसे ही हम लिख सकते हैं. सो B11 होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म होगा B12, थर्ड टर्म होगा B13, एंड इधर होगा B21, B22 एंड B23, है ना. नाउ इफ दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल, दैट इज A11 इज इक्वल टू B11. इसका मतलब क्या होगा? दिस टर्म विल आल्सो बी इक्वल टू दिस टर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये तो m by n जो ऑर्डर है और साइज है ये तो सेम होगा ही होगा. एंड नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो ईच एंड एवरी एंटिटीज और एवरी एलिमेंट ऑफ दिस टू मैट्रिक्स शुड बी सेम. Only in that case we can say that A is equal to B. So this is the definition of equality of matrices. Each and every element को भी सेम होना पड़ेगा और इसका जो साइज है वो भी सेम होगा. मतलब m by n अगर A है तो B भी होगा m by n, है ना. Suppose we have a matrix something like this. Let me talk about कि मैट्रिक्स है A. So suppose there is 4 1 2 0. This is a matrix. And another matrix suppose B. A and B इक्वल तब होगा जब ये सेम होगा. 4 1
2 0, तो ए एंड बी इक्वल, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी सेम। सपोज वी हैव ए इज इक्वल टू -2 1 0 x, है ना, एंड बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है सपोज दैट इज इक्वल टू -2, है ना, 1 0 एंड b। नाउ if a is equal to b, if a is equal to b, then obviously x must be equal to b। देखिए ये जो एलिमेंट्स है ये डिफरेंट एलिमेंट है ना, सो दैट विल बी दिस। बट अगर ये नहीं हुआ, डिफरेंट साइज का मैट्रिक्स अगर हो गया तो क्या होगा, वो डिफरेंट मैट्रिक्स हो गया, वो इक्वल नहीं होगा। मान लीजिए ये देखिए सेम ऑर्डर में है ना, 2/2 2/2, लेकिन अगर ये 2/2 नहीं हुआ, 2/2 नहीं हुआ, सेम ऑर्डर नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो डिफरेंट होगा। ओके, सो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स का जो मेन बात है क्या है कि ये साइज सेम होगा एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो भी सेम होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट ये एक छोटा सा जो रूल है सिंपल, दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यू नो। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखिए क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इफ यू वांट टू add to matrix A and B, suppose we have and A is written as AJK and B written as BJK, so they should have the same size first of all। मतलब ये m by n अगर ये है तो ये भी m by n ही होगा। So this is the first criteria that if you want to add two matrices, one is A that is JK which is m by n and another matrix suppose B that is BJK that is also m by n, so these two should be same size। The same size is written a plus b and has the entries ajk plus bjk। मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए कि तो a प्लस बी क्या होगा, देखिए a प्लस बी का कोई भी एलिमेंट, ये एक जनरल एलिमेंट है ना, a j के क्या है, एक जनरल एलिमेंट है m by n मैट्रिक्स के अंदर, b j के क्या है, ये भी एक जनरल एलिमेंट है b के अंदर। नाउ a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी में जो जनरल एलिमेंट होगा दैट इज ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट होगा ना, तो दैट विल बी जस्ट ए जे के प्लस बी जे के। मतलब जो ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है और बी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है, उस दोनों एलिमेंट का एडिशन होगा, सिंपल एडिशन होगा, बस उनका जो पोजीशन है वो सेम होना चाहिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट, मान लीजिए कि ए जो है इट इज जस्ट 2 1 0 -1 एंड बी जो है दैट इज 1 1 2 1, है ना। नाउ इफ यू वांट टू ऐड ए प्लस बी तो क्या होगा, देखिए ये 2 ये 1 से एडिशन होगा, मतलब 2 + 1 = 3 हो जाएगा दिस टर्म, एंड नेक्स्ट 1 + 1 दैट विल बी 2, 0 + 2 दैट विल बी 2, -1 + 1 दैट विल बी 0, सो दैट इज द ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये टर्म जो है ये है a11 टर्म, है ना, और ये टर्म जो है ये है b11 टर्म। नाउ दिस 3 कैसे आ गया, a11 + b11, ये बात हो रहा है कि ajk + bjk। इसका मतलब सिमिलरली देखिए ये टर्म है a12 और ये टर्म हो गया b12, तो देखिए ये जो टर्म आएगा ये टर्म कैसे आ रहा है, a12 + b12, a12 + b12। इसका मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उनका जो पोजीशन है ना, वो सेम पोजीशन से सेम पोजीशन एडिशन होगा, है ना, तब हम a + b निकल सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया क्या है, ये जो इसीलिए ये क्राइटेरिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये सेम होगा, जैसे हम यहाँ 2/2 मैट्रिक्स लिया है ना। सो मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज कैन नॉट बी एडेड। एज ए स्पेशल केस द सम ऑफ a + b of 2 रो वेक्टर्स और 2 कॉलम वेक्टर्स व्हिच मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। देखिए अगर एक कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर का हम बात करते हैं, कॉलम पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर क्या है ना, कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज दिस इज ए मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई, सो सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स एंड अनदर मैट्रिक्स वी हैव सपोज मान लीजिए कि 2 1 3 4 5 5 0 1 एंड 1 1 2, मान लीजिए दो मैट्रिक्स है। सो ये तो सिंपल 3/3 मैट्रिक्स हो गया, ये भी 3/3 मैट्रिक्स हो गया। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट, मान लीजिए कि ये सिंपल एक रो है, सिंपल एक रो है, जैसे कि ABC है ना, ABC।
तो ये भी एक 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 मैट्रिक्स ही है। इसको हम क्या कहते हैं, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रो वेक्टर, क्योंकि एक ही रो है, रो वेक्टर, है ना। सिमिलरली देखिए, मान लीजिए कोई कॉलम है, जैसे यहाँ एक कॉलम हो गया, कि यहां भी हो सकता है, मान लीजिए कि ADG ऐसे हो गया, तो ये हो गया कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर, है ना। तो अगर हम मान लीजिए ऐसे कोई दो मैट्रिक्स है जो दो ही रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स या रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर है, वो भी हो सकते हैं। मान लीजिए देखिए, ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये क्या है, ये जो कॉलम है 3 कॉलम है ना, लेकिन रो एक है, तो ये हो गया 1/3। लेकिन यहां देखिए, ये रो तो है 1 2 3, लेकिन कॉलम एक ही है, तो ये हो गया 1/3, है ना। तो देखिए ये 1/3, सॉरी यहां रो हो गया 3, तो 3/1। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये डिफरेंट साइज हो गया। मान लीजिए कि सेम साइज का मैट्रिक्स है, 2 रो वेक्टर्स और 2 कॉलम वेक्टर सेम साइज का है। सेम साइज का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि एक है जैसे कि ABC और ABC, है ना, और हो गया मान लीजिए DEF। तो अगर हम इसको ए वेक्टर कहते हैं और इसको B वेक्टर, ये सिंपल रो वेक्टर है ना। तो A प्लस बी क्या होगा, देखिए सिंपल क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया A प्लस डी, सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा B प्लस ई, एंड थर्ड एलिमेंट हो जाएगा C प्लस एफ। ये हो गया सिंपल, इसका मतलब यही है। मान लीजिए कि मैं फिर भी ये समझाता हूं। मान लीजिए कि वी हैव कॉलम मैट्रिक्स सपोज, रो मैट्रिक्स सपोज 5 2 1, और एक मैट्रिक्स है जो है 1 1 2। तो देखिए ये सेम साइज का मैट्रिक्स हो गया, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है, सो व्हाट विल बी A प्लस बी, वी कैन सिंपल ऐड, है ना। 5 + 1 6, 2 + 1 3, 1 + 2 3, ये हो जाएगा, है ना। सिंपली अगर एक कॉलम फॉर्म में है, सपोज 5 2 1 1 1 2, सपोज वी हैव टू ऐड दिस 2, है ना, समटाइम, सो वी कैन राइट डायरेक्ट, वी कैन डायरेक्टली ऐड दिस, दैट इज 5 + 1 6, 2 + 1 3, 1 + 2 3, ये हो जाएगा ऐसे। बट ये सेम साइज होना चाहिए, बट यू कैन नॉट ऐड दिस 5 to 1, है ना, विद दिस 1 1 2, so that is not defined, you cannot add। तो पहले हम ये बोल दिया कि द सेम साइज, तो साइज सेम होना चाहिए, क्लियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, है ना। मैट्रिक्स एक्चुअली एक ये वेक्टर है, ये जो है ये कॉलम वेक्टर रो वेक्टर है। सो हमारे पास 3 एक साथ रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर मिलकर वो मैट्रिक्स बनाता है, तो एक्चुअली ये वेक्टर है। सो मान लीजिए कि मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मैट्रिक्स का खुद का भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो m/n मैट्रिक्स है, जो है A = सिंपल हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, है ना, कि A जो मैट्रिक्स है दैट इज सिंपली AJK, एंड ये है m/n, सो यहां भी ऐसे लिखना चाहिए m/n मैट्रिक्स, है ना। एंड एनी स्केलर नंबर C इज क्या है, C क्या है, स्केलर नंबर है, C इज जस्ट अ स्केलर नंबर, है ना, C इज जस्ट ए स्केलर नंबर, इज रिटन एज CA। तो C × A अगर हो गया, मान ली C × तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। बट ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो है ये m/n ही रहेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, दिस इज इक्वल टू C × AJK एंड दिस JK इज m/n। तो ये C जो है ये हर कोई एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है एक, सपोज मैं दिखा देता हूँ 1 2 3 4, और इसको हम सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो फाइनल मैट्रिक्स हो जाए 2 4 6 8, है ना। मतलब ये 2 जो है ये हर कोई एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि C ये हर कोई एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और डिवाइड, सिंपली वी कैन डिवाइड दिस आल्सो, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज नथिंग बट 1/2। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स समथिंग लाइक दिस 2 4 8 6, है ना। तो अगर हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 1 2 4 3, है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं। समटाइम्स अ नेगेटिव साइन इज देयर, मान लीजिए कि ये नेगेटिव है तो यहाँ भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ओके। सो हियर माइनस, इसलिए हम लिखा है कि हियर माइनस
आई इंटू ए मतलब -1 इंटू ए इज सिंपली रिटर्न एज -a एंड इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ ए, है ना। सो माइनस के इज रिटर्न एज माइनस सिंपल के। सो ए मैट्रिक्स है ए, इसके साथ मान लीजिए माइनस के मल्टीप्लाई हो गया तो इट विल बी जस्ट माइनस के। सो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, उसका नेगेटिव क्या होगा -b। अगर हम इसको ए के साथ एडिशन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी एक्चुअली। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। सो दिस कैन नॉट, इसके लिए भी सेम साइज होना चाहिए क्योंकि ये भी एक सब्ट्रैक्शन ही है, ये एडिशन ही है। देखिए a के साथ -b के एडिशन हो रहा है, यही तो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन है ना। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली नॉट अनदर काइंड्स ऑफ ऑपरेशन, इट इज जस्ट एडिशन। ओके, एडिशन विथ अ नेगेटिव। ओके, सो if it is एडिशन फॉर नंबर्स, मान लीजिए सपोज 2, एक नंबर है 3, एक नंबर है -2। सो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 3 - 2 हो जाएगा। तो नंबर के बारे में भी ये सेम थिंग है और वेक्टर के बारे में भी ये सेम थिंग होता है ना। सो नेगेटिव इज सब्ट्रैक्शन, कोई अलग ऑपरेशन होता ही नहीं। सब्ट्रैक्शन क्या है, बेसिकली एक एडिशन ही है, लेकिन जो दोनों क्वांटिटी का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों एंटिटी का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट में एक दूसरे का अगर ऑपोजिट हो गया, साइन ऑपोजिट हो गया, तो जब हम उस दोनों को एडिशन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाते हैं, है ना। सो दिस इज जस्ट नथिंग बट एडिशन। ओके, नाउ सम प्रॉपर्टीज आर देयर आल्सो फॉर मैट्रिक एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो मैट्रिक एडिशन में जैसे कि दो मैट्रिक्स है a and b, so we can write a plus b is equal to b plus a, and you can see this all the properties that we have written here are actually the property of vector इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ऑर्डिनरी जो 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो होते हैं वेक्टर का जो रिलेशन है, जैसे ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपल। सो दिस डज नॉट मैटर कि वट एवर मैट्रिक्स यू कैन राइट फास्ट, you can add a plus b or b plus a, that will be same. So this is known as commutative property, you know, commutative property. Similarly, if you have 3 matrices, so if you add first a plus b then c, and if you first b plus c then a, then nothing will be changed. Okay, so a plus b plus c will be same. So this is known as the associative property, है ना, this is known as associative property. Similarly, if you have 0 then a plus 0 is equal to a. Here 0 is nothing but the zero matrix. 0 is zero matrix. Zero matrix is what? Whose all entities or all elements are 0. Something like this, 0 0 0 0 0 0. So this is just a zero matrix. Okay, so this is not a simple 0, this is zero matrix. So this is also the existence of 0 is here, है ना. Similarly, a plus minus a, this is the negative of a, also that will also give you 0. So this is also zero matrix, है ना. So ये जो 4 प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी जो है सेम टू सेम है एज हम ऑर्डिनरी 3 डायमेंशनल वेक्टर में करते हैं. ओके, सिमिलरली फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास 2 स्केलर है, एक है c एक है k. तो अगर a प्लस बी है और a प्लस बी के साथ अगर c मल्टीप्लाई करते हैं तो c a एंड b दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना. अगर देखिए c प्लस k हो गया, ये दोनों स्केलर का अगर एडिशन हो गया तो ये तो एक स्केलर ही बन जाएगा. तो सिंपल अगर इसके साथ हमको a को मल्टीप्लाई करना है, सो दैट विल बी c इंटू ए प्लस के इंटू ए, सिंपल हो जाएगा, है ना. Similarly, if we have 2 scalars c and k, it does not matter that which scalar is multiplied by a first, है ना. So देखिए मान लीजिए कि c into k will be same as k into ca, and that will be same as ck into a, ck into a. Okay, so this is also another property. And if you have identity matrix I and into you multiply with a, then it will give you a. This is identity element. That means it's 1 actually. Okay. So these properties, some properties are very important and you should know this. These are very basic things of matrix, and we will discuss more basic things of matrix, something like matrix multiplication. Okay, in the next class. तो ऐसे हम थोड़ा डिस्कस करूंगा, और ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है CSIR नेट का फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. So if you are new in this channel, then please subscribe my channel and hit the bell icon also. Okay, thank you.